they will be addressing now. First of all, I will request Professor P.L. Visheshwarao. I think many of you need not have any introduction about him. He is a very active man, and in several progressive movements he is very much active. He was the former dean of. This is the message we want to give. Friends, sir, it is protest, sir. Some. Long live people's movements, long live! Long live, long live! Long live people's democratic movements, long live! Long live, long live! Awaaz do! Awaaz do! Long live student movements, long live! Long live people's movements, long live! तो इसका रूट कॉज क्या है और इसका बेनिफिट किसको हो रहा है और ये क्यों लेके आए, इसके कारण को समझने के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आसाम में जो एनआरसी के संदर्भ में जो एनआरसी से बाहर रखा गया वो 19 लाख लोगों को 19 लाख लोगों को एनआरसी के बाहर रखा गया। तो उसमें से अगर देखा जाए, क्योंकि मीडिया और सारे पार्टी के लोग यही प्रचार कर रहे पूरे भारत देश में कि ये मुसलमानों की समस्या है, यही प्रचार कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की समस्या है। तो अगर एनआरसी का जो असम में इन्होंने डाटा निकाला और एनआरसी के बाहर रखा गया तो उसमें सिर्फ 5 लाख लोग मुसलमान है और 14 लाख लोग ये एससी एसटी ओबीसी के लोग, जिनको हिंदू बना के रखा गया, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये 14 लाख लोग हैं। तो मैं ये मुद्दे पे थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं कि ये समस्या मुसलमानों की नहीं है, ये समस्या जो लोग स्टेज पर विराजमान होने वाले आभारिया सबको मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मतलब गॉड इज ट्रुथ। मैं यहाँ पर कोई धर्म का प्रचार करने नहीं आया। हाँ, मैं उस धर्म का प्रचार को जरूर करता हूँ जो एक अलग सा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, और उस धर्म का नाम है इंसानियत। मैं इंसानियत का पुजारी हूँ। आप लोग मुझे इस नाचीज को, मैं माचिस नहीं हूँ, नाचीज ही हूँ, क्योंकि एक साहब ने मुझसे कहा था कि आप नाचीज बोलते हो लेकिन आप माचिस हो। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इंसानियत के खिलाफ हैवानियत खड़ी हो जाए तो कौन जीतेगा? बताइए, इंसानियत ही आखिरी में जीतेगी। मुझे बुलाया तो गया है CAA, NRC और NPR के मुतालिक कुछ रोशनी या रिएक्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। वो लोगों ने यही people are in the forefront of many social movements. I'll just say, my dear friends, we are meeting at a very critical point of Indian history. I request all of you to give me permission to speak in English. The kind of a situation today we are witnessing in India, we have not seen it in last over 70 years of Indian democracy. కార్యక్రమం యొక్క ప్రాధాన్యత దృష్టిలో ఉంచుకొని సమావేశానికి రావడం జరిగిందన్న. సభ మీద ఉన్నటువంటి గొప్ప ఉద్యమకారి, దేశభక్తురాలు మేధా పట్కర్జీ, నేను ఆమెతో పాటు నర్మదా బచావ్ ఉద్యమ సందర్భంగా ఒక రోజంతా మేధా పట్కర్తో ఉండడం జరిగింది. వాస్తవంగా ఇవాళ ప్రపంచంలోనే, భారతదేశంలోనే ఒక పేరు ఉన్నటువంటి ఆమె ఉద్యమకారిని. అది ఎంత సింపుల్గా కార్యకర్తలతో పాటు
అక్కడ ఉండే సత్రంగి మీద కూర్చోండి, రాత్రి 11 o'clock అక్కడ వర్కర్స్ కాంగ్రెస్ టెక్ మీద కూర్చోండి, 11 o'clock అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో పలకరించడం జరిగింది. అంత సింపుల్గా ఉండేటటువంటి ఒక నాయకురాలు నేను భారతదేశంలో చూడలేదు. ఇక్కడ చెప్పాలంటే చాలా గొప్ప. ఆమె పట్ల అక్కడ ప్రజలు చూపినటువంటి ప్రేమ, ఆదరణ, అంటే కార్యకర్తలతో పాటు కూర్చొని తినడం, ఒక నాయకురాలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సామాన్య కార్యకర్తలతో పాటు కూర్చొని తినడం అనేది నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది. ఆమె సింప్లిసిటీకి నిజంగా నమస్కారాలు. దానిలో మనకు వేదిక ఉన్నటువంటి మిత్రుడు ప్రొఫెసర్ పిఎన్ విశ్వేశ్వరరావు గారు, ఆయన మన తెలంగాణలో పనిలే ఉద్యమాలలో మన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యువతను ఉత్తేజపరిచి యువతకు నాలెడ్జ్ ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. మరి ప్రముఖ మరొక నాయకులు మనకు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వారు సందీప్ పాండే గారు, డాక్టర్ సందీప్ పాండే గారు. ఒక సోషలిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని భారత ప్రజలు తీసుకొస్తూ ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి నాయకుల్లో ఒకటువంటి సందీప్ పాండే గారు. మా పాత మిత్రుడు అజీజ్ పాషా గారు, ఇప్పుడు కాదు 1971 నుంచి కూడా ఆయన మా ఫ్రెండ్. మరి ఇందాక మనం విన్నాం మన డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు రియల్గా ఒక ఈ ప్రపంచ రాజకీయాల విషయంలో, దేశ రాజకీయాల విషయంలో ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఉంది, ఒక క్లారిటీ, ఒక వండర్ఫుల్ క్లారిటీ అనేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి శ్రీధర్ గారు. అదేవిధంగా ఇతర స్టేజ్ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద నాయకులు గారు, మా జీవన్ కుమార్ గారు, ఇతర మిత్రులు అందరికీ కూడా నా ఒక హృదయపూర్వక అద్భుతమైనటువంటి పాట మాయమైపోతున్నదమ్మా మనిషి అన్నవాడు. ఇవాళ భారతదేశంలో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తే ఎక్కడికక్కడ లాఠీ ఛార్జీలు, ఎక్కడికక్కడ మన జేఎన్యూ విద్యార్థుల్లో జరిగినటువంటి దాడి, అమ్మాయిల మీద జరుగుతున్నటువంటి అఘాయిత్యాలు, రైతుల ఆత్మహత్యలు, दोस्तों, आज ये कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है। बहुत अहम शख्सियतें यहाँ पर जमा है। मैं उन तमाम का इस्तेमाल करता हूँ। విశ్వకవి రవీంద్ర మాటలు, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మాటలు గుర్తు చేసుకుందాం. ఎక్కడ మనసు నిర్భయంగా ఉంటుందో, ఎక్కడ ప్రపంచం ముక్కలు ముక్కలై మగ్గిపోదో, ఎక్కడ ఒక మనిషి తోటి మనిషిని దోచుకోవడో, అక్కడ ఆ స్వేచ్ఛా స్వర్గంలోని భగవంతుడా నా ఈ దేశాన్ని మేల్కొల్పు అంటూ ఆయన గీతాన్ని రచించాడు. నిజంగా ఎంత నిజమో ఒకసారి ఆలోచించండి. నేను అడిగే కూడా ఉండదు తప్పదు. ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే, మా ఊళ్ళో నుంచి వచ్చాం సార్, హిందూ ఉన్నారు, ముస్లిం ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు సార్. మాకు తెలుసు సార్, పొద్దున వేసే బావ మామ అక్క అని మాట్లాడతారు. మాకు ఇవన్నీ ఏం తెలుసు సార్. కానీ ప్రపంచాన్ని చూస్తే భయం వేస్తుంది, ఇంత జరుగుతుందా అనిపిస్తుంది. ఒకసారి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, మాకు నిజంగా ప్రపంచం తెలియకుంటే బాగుండేమో అనిపించేది. అలా మారిపోయింది. ఇవాళ రాజ్యాంగం గురించి నేర్చుకున్న మేము, జర్నలిజం చదివిన మాకే ఇలా భయం వేస్తుంటే ఒక సామాన్యుడికి భయం వేయాలా? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. हिंदी में बोलूँ ऐसा कुछ। आप सब लोगों को सलाम अदावत। आज इस मंच पर इतने सारे विजनरीज यहाँ बैठे हुए, जस्टिस चंद्र कुमार जी से लेकर अजीज पाशा जी से लेकर विश्वेश्वर राव जी से लेकर तमाम लोग जिनको मैं हर एक को नाम लेकर जानती भी नहीं। हामिद मोहम्मद खान जी ने अभी जो बात रखी, या श्रीधर जी, हम सब लोगों को पता है कि इनके ही नजरिए से हम देखना चाहते हैं इस मुल्क को और जगत को भी, और इसलिए आज यहाँ इन सब लोगों का एकत्रित आना और इनको
सांप्रदायिकता और फासिज्म के खिलाफ लड़ने वाली समिति ने बहुत सारे संगठनों का समन्वय करके एकत्रित लाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इनका अभिनंदन करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे साथी संदीप पांडे जी भी यहाँ हैं और मीरा संघमित्रा भी यहाँ है, जीवन गारू भी यहाँ है, जाहिरुद्दीन खान जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग तो बोल रहे हैं, बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, ये अपने दिल और दिमाग में समा रहे हैं। लेकिन सही तो सलाम उनको करना चाहिए जिन्होंने इस देश की सियासत को भी हिला दिया है। वो युवा है, वो विद्यार्थी है जो जामिया मिलिया के हैं, जो JNU के हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। और मैं रोहित बेमुल्ला को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि जामिया मिलिया क्या है और JNU क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है, जहां मैं कायम जाती रही हूँ। हमारे जैसे आंदोलनकारी वहां मध्य रात्र के बाद भी संवाद करते रहे हैं। वहां ऐसे युवा और विद्यार्थी देश के समाये हुए दिखे हम लोगों को कि जो ही इस देश को बचा भी सकते हैं और इस देश को बना भी सकते हैं। वो ऐसी व्यापक विचारधारा के विद्यार्थी हैं कि जो किसानों, मजदूरों, आदिवासी और दलितों और अल्पसंख्यकों के भी उनके ही हल्लाखोरों के निशाने बनाने दिए जाना, इस बात को हम नकारते हैं, निंदनीय मानते हैं, धिक्कार करते हैं। और इसलिए साथियों, आज जब कभी 40 बुद्धिजीवियों ने देश के कुछ भूमिका अदा की थी और लिखा था कि जो हो रहा है मॉब लिंचिंग तक, उसकी हम खिलाफत करते हैं, उससे ज्यादा 2000 वैज्ञानिकों ने आज बुद्धिजीवी और श्रमजीवियों के बीच का समन्वय साध कर सत्ता और जनता के बीच के संबंध, जिसको ही राजनीति नाम दिया जाता है, उसको बदलने में अपना योगदान दिया है। मैं उनको भी सलाम करती हूँ। अब ये सब निशाने पर नहीं होंगे तो क्या होंगे? जो चाहते नहीं है कि तख्त पर बैठे हुए लोगों को जरा भी धक्का लगे, जो चाहते नहीं है कि इस देश में संवैधानिक मूल्यों की चौखट में वाद और विवाद भी हो सके, जो चाहते नहीं है कि यहाँ सर्वधर्म समभाव समाज में और राजनीति में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे, जो चाहते नहीं है कि गांव से लेकर व्यक्ति से लेकर पूरे देश, जिसको कि हम नेशन स्टेट कहते हैं, केवल शासन या राज्य नहीं, केवल स्टेट नहीं, बचाने का मकसद भी हासिल करना संभव होगा। अन्यथा ये कुछ समय का आंदोलन बना रहेगा और लंबी मंजिल तक चलना मुश्किल होगा। इसलिए इस प्रकार के सम्मेलनों की बहुत जरूरत है, न केवल रास्तों पर लाखों लोगों को आना। आज इसलिए भी मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। क्या है CAA, ये समझने के लिए सही तो वो एक प्रोविजो बाकी है, काफी है, जिसमें केवल एक ही धर्म का नाम गलती से छूट गया है। लेकिन आसाम का अनुभव बता रहा है कि 19 लाख में से 12 लाख तो हिंदू थे, इसलिए उनका लक्ष्य अलग था, पर निशाना नहीं जम रहा है उनको। और 1600 करोड़ रुपए खर्च करके 6 साल की प्रक्रिया करके आसाम में जो हुआ है, हमारे साथी फैजल खान जी खुदाई खिदमतगार के उनके सहयोगी आसाम में डटे रहे और वो डॉक्यूमेंटेशन पर काम करते रहे। लेकिन कहां तक हासिल हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन बनाना? इसका अनुभव आसाम में सुनो तुम क्या मानो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज, सुनो तुम क्या मानो एक हमारी। हम कहते हैं नफरत छोड़ो, इंसानों से प्यार करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो एक हमारी।
हम कहते हैं वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो। हम कहते हैं बेघर बेदर। थोड़ा भी समझना चाहिए। देखिए, ये जो एनआरसी का मामला है ये सिर्फ आसाम से संबंधित है। असल में आसाम के लोग जिनकी आबादी कोई 3.2 या 3 करोड़ है, उनको काफी समय से लगता रहा है कि बाहर से, और खास करके क्योंकि अंग्रेजों ने आसाम को बंगाल का हिस्सा बना दिया, तो उनको लगता था कि ये जो बंगाल से लोग आ रहे हैं एक दिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये हम पे भारी पड़ेगी। तो यहाँ तक कि आज़ादी के समय में जो हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से आए और भारत ने कहा था कि उनको यहाँ बसाने की जगह दी जाएगी, जैसे कि पाकिस्तान ने कहा था कि हिंदुस्तान से जो मुस्लिम आएंगे उनको वहाँ बसाया जाएगा, तो आज तक कई ऐसे हिंदू हैं जो 47 में आए और उनको अभी तक वहां जमीन नहीं मिली। एक मेरे मामा जी थे जिनको जयप्रकाश नारायण जी ने चीन की लड़ाई के समय वहां भेज दिया था काम करने के लिए, तो उन्होंने एक अंगार काटा सत्याग्रह किया था कुछ हिंदू बंगालियों को लेके कि उनको वहां पे बसाया जाए, और उस समय वहां के कलेक्टर ने उसके ऊपर हाथी चलवा दिया था। तो ये आसामियों और बंगालियों की पुरानी लड़ाई है। और आसाम में एक आंदोलन हुआ स्टूडेंट्स का, और उन्होंने कहा कि ये बाहरी लोगों को बाहर करो। तो 6 साल आंदोलन चला, राजीव गांधी के साथ समझौता हुआ जिसको आसाम अकॉर्ड कहते हैं, जिसमें यह तय हुआ, क्योंकि कोई तारीख तय की जानी थी, ये तय हुआ कि जिस दिन बांग्लादेश बना उसके पहले जो आ गया उसको हिंदुस्तान का शहरी मान लेंगे और उसके बाद जो आया उसको वापस जाना पड़ेगा। ये समझौता हो गया। अब ये बात ठंडे बस्ते में पड़ी थी, और ये हमको सोचना चाहिए कि जिस संगठन ने ये आंदोलन चलाया, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आज देश भर जो विद्यार्थियों के, युवाओं के आंदोलन चल रहे हैं वो केवल उनके नहीं, वो पूरे देश की जनता के हैं। विद्यार्थियों के अगुवाही के लिए हम उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ जो हिंसक हमले हो रहे हैं उसका धिक्कार करते हैं। हमारी मांग है कि जेएनयू हो, कि जामिया मिलिया हो, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहाँ हुए सभी हिंसक प्रकारों की तत्काल जांच होकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कह रहे हैं कि हमने ये किया, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, इसका मतलब दिल्ली पुलिस उनके साथ है। और दीपिका पादुकोण जैसी कलाकार हो या योगेंद्र यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनके साथ भी जो हो रहा है वो भी बहुत ही खतरनाक अन्यायकारक है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसकी कोई ज़रूरत इस देश को नहीं है। 1955 का कानून काफ़ी है और उसके आधार पर शांति से अपनी अपनी नागरिकता का अभिमान रखते हुए इस देश के तमाम धर्म और जाति के लोग चलते आए हैं। हमें चाहिए कि संविधान का पालन करें। और जो एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो एनआरसी की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि 2003 में जो भी रूल्स लाए गए हैं उन रूल्स में कागजात कौन से चाहिए यहाँ से लेकर ज़बरदस्ती करने तक, और जो कागजात नहीं देगा उन पर कानूनी कार्रवाई और सज़ा दिलाने तक के नए नियम लागू किए गए जो वाजपेयी सरकार के समय हुए। तो उसके आधार पर अभी एनपीआर चलेगा और उसके आधार पर एनआरसी होगा। तो जो आसाम में हुआ है, लाखों लोगों को, न केवल मुसलमानों को लेकिन हिंदुओं को भी बाहर किया जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा चिंता है हमारी मेहनतकश जनता की, जो कि आज उनके लिए जो कानून है वो बदलने के कारण भी बेरोजगारी और ठेका मजदूरी और सब कुछ अन्याय भुगत रहे हैं। उनके जल जंगल ज़मीन छीने जा रहे हैं और उनकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है, क्योंकि उनके पास कोई कागजी खेल दिखाने के लिए कागजात उपलब्ध नहीं होते हैं और उनका योगदान भी कहीं गिना नहीं जाता, जैसे आज़ादी आंदोलन में मुस्लिम समाज का योगदान भी।